السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصلہ پاکستان کا اور میں ہوں کامران خان۔ میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 44 میں موجود ہوں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا آخری ضلع ہے اور اس کی سرحدیں صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان سے ملتی ہیں اور جنوبی وزیرستان اس کے کافی قریب ہے، اس وجہ سے یہ ضلع حساس ترین ہے۔ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر کافی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار علی امین خان گنڈا پور جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر اس نشست کے لیے کل 15 امیدوار مد مقابل ہیں اور اگر ہم رجسٹرڈ ووٹوں کی بات کریں تو یہاں پر 3,20,374 جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم عوام میں جاتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے آ کر یہاں پر مسائل حل کرے گی۔ تو یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ السلام علیکم جی، کس کو ووٹ دیں گے؟ علی امین خان گنڈا پور کو۔ اچھا، آپ کیوں علی امین خان گنڈا پور کو جو ہے ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ سر جی، جب سے ہم چھوٹے تھے تو جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ علی امین خان کسی نے کام نہیں کیا، علی امین خان گنڈا پور نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں گیس بھی نہیں آ رہی تھی، ہمارا علاقہ ہو جاتا ہے City 2 ظفر آباد کالونی، تو وہاں پہ مولوی صاحب نے اسٹے کر رکھا تھا۔ جیسے علی امین خان گنڈا پور اپنی سیٹ پہ آئے تو انہوں نے فوراً گیس وہاں پہ چالو کر دی اور بھی بڑے بڑے کام کیا علی امین خان گنڈا پور نے۔ اچھا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، کیا انہوں نے ماضی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی کام کیا ہے؟ جی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کیا انہوں نے۔ السلام علیکم، آپ کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جی، جمعیت علماء اسلام کو۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ ہم خاندانی طور پہ انہی کے ساتھ ہیں، جمعیت کے ساتھ۔ اچھا، یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ماضی میں کوئی کام کیا ہے؟ نہیں، بالکل۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو مسائل ہیں وہ حل کر پائے گی؟ انشاءاللہ ضرور حل کرے گی۔ آپ ان کو ایک دفعہ سیٹیں دیں، عوام سے ایک دفعہ ان کو ووٹ دیں، اپنی ووٹ کی طاقت سے ان کو جتائیں، انشاءاللہ ضرور کام کرے گی۔ السلام علیکم، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جمعیت اسلام کو ووٹ دیں گے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو ہم خاندانی ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کام انشاءاللہ ان سے ہوں گے، سارے کریں گے اور سب ووٹ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ماضی میں جو دوسری جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی کام کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگتا کوئی کام کیا ہو۔ السلام علیکم، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ علی امین کو۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس نے کام بھی کیے ہیں اور سڑکیں وغیرہ بھی بنائی ہیں اور چیزیں تھیں، وہ بھی اسپتال میں بھی سہولت دی ہے اس نے بہت، تو اس لیے ہم علی امین کو ووٹ دیں۔ اچھا، آپ کو یقین ہے کہ علی امین جو ہے وہ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل حل کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے، پہلے بھی اس نے کیے ہیں، اب بھی وہی کرے گا۔ اچھا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو بڑے مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ بجلی ہے، گیس ہے اور اس کا ہے، بجلی کے بل وغیرہ ہوتے ہیں انہوں کا ہے۔ جی، ہر آدمی کے جو اپنے نظریات ہیں اور اپنے خیالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ مزید آگے چلتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ ہم دیکھیں گے، پہلے تو سیدھی بات ہے علی امین کو دیتے تھے، PTI کو نا، تو اس بار انشاءاللہ دیکھیں گے جو کام ہمارے کرے گا تو اس سے دیں گے، کیونکہ کام سے حساب سے تو انہوں نے کافی اچھا کام کیا، یہ بات نہیں ہے۔ نہیں، ابھی جو علی امین بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسری بھی جماعتیں ہیں، تو آپ کا ابھی کس جماعت کی طرف جو ہے آپ کا جھکاؤ ہے یا آپ کے نظریات کس طرف ہیں کہ ابھی کون سی جماعت بہتر ہے؟ یہ فی الحال سوچ رہے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، جیسے ہوگا کوشش تو کریں گے کہ علی امین کو دیں گے، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے کافی کام کیا ہمارے علاقے کے حساب سے، ہم کہہ رہے ہیں گیس وغیرہ لائے اور بھی بہت سارے کام کیے، تو فی الحال انشاءاللہ سوچیں گے جیسا ہوگا پھر۔ اچھا، ماضی میں جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کس جماعت نے زیادہ یہاں پر کام کیے ہیں؟ ہمارے حساب سے تو PTI نے زیادہ کام کیے ہیں، جیسے علی امین ہو گیا، کیونکہ اپنے علاقے کو سجایا ہے، بہت اچھے کام کیے ہیں، اور باقیوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی ایسا کام کیا انہوں نے۔
अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं देंगे भाईजान। क्या वजह है? किस इधर बिजली का निज़ाम सही नहीं है, 16 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, बिल दबा के दे रहे हैं, फिर आगे से बदतमीजी भी कर रहे हैं। क्या करें, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर माजी में किसी जमात ने कोई काम नहीं किया डेरा इस्माइल खान में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये थोड़े थोड़े फूल बोटे लगा दिए हैं, अभी ये काम नहीं है। ये गरीबों की हमदर्दी करें, राशन अपना को रिलीफ दे, कोई शैयाँ सस्तियाँ करें। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में जो अहम मसाइल हैं आपकी नज़र में वो क्या है? अहम मसाइल यही है, बिजली है, ना गैस है, ना बिजली है, और ना कोई इतना कोई निज़ाम है, कोई निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। गलियों में देखो जाके गंद पड़े हैं, अभी तक नालियाँ बंद पड़ी हैं, कोई साफ कराने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? वालेकुम सलाम, किसी को भी नहीं देगा फिलहाल। अच्छा, क्या वजह क्या है? ना बिजली है, ना गैस है, निकासी भी नहीं है, बहुत मसले है। अस्पताल का निज़ाम सही नहीं है, रोड का भी सही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके उम्मीदवार कोई भी इस आपके वोट का हकदार नहीं है? हकदार वो होगा जो काम करेगा, किसी को दिखाएगा कोई काम हो, यही मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो उसी को वोट देंगे जिसके नाम लेने पर भी पाबंदी है। नहीं, बात सुने ना, आप पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार तो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, क्या आप पीटीआई को वोट देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो यहाँ पर आकर डेरा इस्माइल खान के मसाइल हल करेगी? इंशाल्लाह पहले भी जैसे किया है ना, अब भी इंशाल्लाह करेगी हल मसले। अच्छा, ये बताएं कि डेरा इस्माइल खान में जो बाकी पार्टियाँ हैं उन्होंने क्या कोई काम नहीं किया है? यार देखा जाए तो पीटीआई के दौर में थोड़े बहुत काम हुए हैं, ठीक है, और अभी जो आएगा फिर वही मसला होगा। पहले भी तो कोई नहीं काम हुए इतने, ख़ासकर तो इन लोगों के मौलाना के दौर में जो आए थे, इन्होंने सही इतने काम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं सर जी जमीयत उलमा इस्लाम, अच्छा, वजह क्या है? जो आलिम है, दीन के ऊपर कम से कम थोड़ा बहुत तो काम कर रहे हैं वो, बाकी तो सारे। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने डेरा इस्माइल खान में माजी में कोई काम किया है? कुछ भी नहीं किया सर। अच्छा, आप ये जो आपको यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो डेरा इस्माइल खान में काम करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, मुझे पूरा यकीन है। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम मौलाना फजल रहमान को वोट दे रहे हैं। वजह क्या है? बस वो साढ़े आपने इंदा है, वो कैसे होंगी है जैको आदे ज़मीर साढ़े दे। अच्छा, आपको यकीन है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो डेरा इस्माइल खान में जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? यार लगता तो ऐसा है, हल हो जाएंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं? वालेकुम सलाम, वोट सिर्फ पीटीआई को। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है जो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम बेहतर किया हमारे लिए टीआई खान में, लाइट हर एक चीज़ की सहूलियत। आप किसको वोट दे रहे हैं? इस्लाम पीटीआई को। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि अली अमीन ने काम किया है। अच्छा, माजी में जो बाकी जमातें हैं उन्होंने क्या डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपकी नज़र में डेरा इस्माइल खान के बड़े मसाइल क्या हैं? बड़े मसाइल वापडा का मसला है, बड़े मसाइल लोड शेडिंग का ज़्यादा मसला है, बिल याद आते हैं और गुर्बत ज़्यादा है, बस यही मसला है। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि पीटीआई ने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं और उन्हें कोई काम भी नहीं किया है। इसने रोड भी बनाए हैं और काम भी बहुत ज़्यादा किए हैं। इधर पानी का मसला है, लाइट का मसला है, बेरोज़गारी है, गरीब मर रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा, जो आता है जल से करके चला जाता है, कोई भी काम यहाँ नहीं करते। पीटीआई ने ज़्यादा काम किया है तो वोट भी पीटीआई को ज़्यादा मिलना चाहिए। आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह मौलाना साहब को वोट देंगे। अच्छा, वजह क्या है? इंशाल्लाह मौलाना साहब ने डेरे के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं मौलाना साहब ने लाए। समझ आ गई, अस्पताल हो, गुमन यूनिवर्सिटी के काम हो, गुमन मेडिकल कॉलेज के हो, मुफ्त महमूद अस्पताल हो, दीनार कैंसर अस्पताल हो, इंशाल्लाह जितने भी है सब मौलाना साहब ने किए। और बाकी अभी जो सिपेक ये बन रहा है बाईपास, ये मौलाना साहब ने मंजूरी की है। अली अमीन ने तो जो काम करा था वो छोटे मोटे गलियों का काम करा, पार्कों का काम किया, वो इतना बड़ा काम नहीं है। हमारा असल मसला है सिपेक का,
मौलाना साहब की वजह से सिपेक का काम हुआ, अगर मौलाना ना होता ये सिपेक हमारे इधर ना आता, समझ आ गई। बाकी तो छोटे मोटे काम तो पहले भी होते थे गरीबों के, ये तो पहले काउंसलर वगैरह करते थे। आलमीन ने कौन सा बड़ा काम किया हमारे डेरे के लिए? ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो हम तरक्यात कामों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया उसने। इंशाल्लाह हम वोट मौलाना साहब को देंगे, पूरे भरपूर तरीके से देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बाकी जमातें हैं, जो बाकी सियासी जमातें हैं, उन्होंने डेरा इस्माइल खान में माजी में कोई काम नहीं किया? भाई ऐसे छोटे मोटे काम तो कर रहे हैं, मगर मेन काम जो हमारा है वो किसी ने भी नहीं करा। एक होता आलमीन ने जो फारक वगैरह ये तो बनाया, मगर मेन जो चीज़ था हमारा वो नहीं, कोई भी नहीं काम करा ऐसा, समझ आ गया। ये मौलाना साहब को इंशाल्लाह हम वोट देंगे, इसके अलावा हम किसी और को वोट नहीं देंगे। आलमीन ने तो 3-4 साल गुजारा, हमारे मुल्क के ऊपर कितना बड़ा कर्जा आया, 14 अरब का कर्जा इन्होंने लिया। पहले इतने अरसों में कभी इतना कर्जा किसी ने नहीं लिया जमात ने जितना इन्होंने लिया अभी इस हुकूमत में। आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह हम जो है एन का वोट मौलाना फजल रहमान साहब को और सूबाई वोट पीपल पार्टी को देंगे। अच्छा, क्या वजह है कि दोनों वोट आप मुख्तलिफ जमातों को दे रहे हैं? जी वैसे जो एन का वोट है वो तो हम शुरू ही से मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वोट भी उसको देना चाहते हैं। और पीपल पार्टी जो है हमारे इलाके में जो MP अहमद करीम खान कुंडी है, उसने हमारे लिए काफ़ी तरक्याती काम किया है, इस वजह से हम इंशाल्लाह ये वोट उसी को दे रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम अगर यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या वो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं हल हो जाएंगे? उम्मीद तो है, पहले जब इक़्तिदार में आई है उन्होंने डेरा इस्माइल खान के लिए ऐसे कुछ काम अच्छे नहीं किए। अब इस मरतबा हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान बज़ात ख़ुद ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मरतबा जीत के हम डेरा इस्माइल खान के लिए कुछ काम करें। और अगर सूबाई हुकूमत जमीयत की आती है तो फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादातर काम करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में डेरा इस्माइल खान में जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं? बड़े मसाइल हमारे ऐसे अस्पताल वाले मसाइल हैं, और ये लेफ़्ट कनाल वाले मसला भी हमारे लिए है, और सबसे जो बढ़ के मसला है वो हमारे लिए वापडा है। वापडा में तकरीबन अब इस वक्त हम चूँकि कारोबारी लोग हैं, हम तो बिल भी वक्त पर देते हैं और टैक्स भी अदा करते हैं, तो इधर हमारे जो सिटी में है जिधर हमारी दुकान है इधर तकरीबन 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। उम्मीद है कि ये इस मसले पर इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान खुद तवज्जो देंगे, ये मसला हल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? सलाम, हम पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है जो हमारा पड़ोसी है और हमारा जो मसला होता है हम उसके पास जाते हैं और वो फिर हमारा मसला भी हल करते हैं, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा, वजह क्या है? वजह काम करके दिखाएं भाई। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं, क्या उन्होंने माजी में डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? कभी भी नहीं किए। अच्छा, आपको यकीन है कि यहाँ पर सिर्फ PTI है जो यहाँ पर मसाइल हल करेगी? जी। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जमीयत को हम वोट देंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह है कि जमीयत ने हमेशा मुल्क के लिए काम किया, हमेशा जो है ना उसने इलाके के लिए काम किया। मौलाना फजल रहमान ने DI खान को गैस दिया, जो बड़े बड़े मंसूबे हैं सब मौलाना फजल रहमान ने किए। अच्छा, आपको यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह पर उम्मीद है, हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद जमीयत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, वजह क्या है? बस वजह ये उसने पहले भी बहुत काम किए, डेरा की बहुत खिदमत किया, इंशाल्लाह आइंदा भी वो करेगा, हमारा बिल्कुल उम्मीद है। इंशाल्लाह जैसे ही वो पास होगा इंशाल्लाह वो डेरे के लिए बहुत तरक्याती काम करेगा। अच्छा, ये जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या इन्होंने माजी में डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? तबाही के सिवा और कुछ नहीं किया, बस करप्शन, चोरी, डाके, बस कुछ नहीं किया, बस खालिस मौलाना फजल रहमान साहब ही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट मौली साहब को दे रही। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? मौली साहब को। अच्छा, तो इसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? उसमें काम कीजिए, लेकिन वोट मौलिक साहब को देंगे फिर। अच्छा, ये आपको यकीन है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा हल। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? मौलाना साहब। वजह क्या है? बस जमीयत में हमें सारा। अच्छा, तो आपको यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? NH44 पे इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह उनकी सबका हुकूमतों में जो काम हुए हैं
उन्हीं वजह से। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो डेर इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह सरकारी महकमे भी हल सरकारी महकमों के भी मसाइल भी हल होंगे और लोगों के भी मसाइल हल होंगे। अच्छा, इसमें डेर इस्माइल खान में माजी में जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने भी डेर इस्माइल खान में कोई काम किया है? किया है, लेकिन इस तरह नहीं किया जिस तरह पीपल पार्टी के दौर में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। वजह क्या है? वजह सर बेसिकली ये है कि इन्होंने हमेशा रोटी कपड़ा मकान सेहत इलाज तालीम ये इनकी मेन मैनिफेस्टो रही है और हमेशा इन्होंने इसी चीज़ पे काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? पाकिस्तान की जो खैर ख्वाह पार्टी है जिसने 14 साल का ख़त्म नबूवत का मसला हल किया वो थे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, और बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी तमाम मुसलमानों पर और पाकिस्तानियों पर ये फ़र्ज़ है कि वो उस शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी के नुमाइंदों को वोट दें जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया था। इस दलील के आगे कोई दलील नहीं है कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के पैरा दिया, जिसने साबित किया कि कादियानी काफिर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत थी उसकी पासदारी की, और मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जो भी उनके मुकाबले में ये दावा करता है वो झूठा है, वो काफिर है, वो मुर्तद है। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये काम किए उम्मत मुस्लिमा के लिए वो सारी दुनिया पे वाज़े हैं, और जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए किए कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, आज अगर हम अमेरिका को, चीन को, रशिया को, जो भी हमारा दुश्मन है मुल्क का, उसको हम ललकारते हैं तो वो सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे पास एटम बम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया। किसने दिया? शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दलील है। स्टील में किसने दी? बेरोजगारों को रोजगार किसने दिया? जमींदारों को सब्सिडी किसने दी? जो हमारे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, जो हमारे आसिफ अली जरदारी हैं, जो उनकी पिछली गवर्नमेंट है, उसने जो हमारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, नवाज शरीफ रोजगार से निकालता है, दूसरी जमातें रोजगार से निकालती है, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। तो इस्लाम का उन्होंने क्या काम किया? कोई काम भी उन्होंने नहीं किया। मेरे भाइयों, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, मैं उनसे कहता हूँ हर बात में तुम देते हो कुफ्र के फतवे, इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने हमेशा कभी कुरान के नाम पर, कभी उन्होंने दीन के नाम पर वोट मांगा, लेकिन मुझे साबित कर दें कि उनकी हुकूमत भी सूबे में रही, उन्होंने शरीयत तो नाफिज नहीं की। मेरे भाइयों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी कैंडिडेट है, हमारा फर्ज और उनका हक बनता है कि हम तीर पर मोहर लगाकर 8 फरवरी को ये साबित कर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद वो जमात है जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत कर सकती है, वकला को मजबूत करती है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मसला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किया था और सारी जमातें उनके खिलाफ थी, लेकिन जो बहाल किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। मेरे भाइयों, अगर मैं बताऊँ ना शुरू हो जाऊँ तो यहाँ आप लिख नहीं सकते और मैं बयान नहीं कर सकता कि डेर इस्माइल खान में जो हमारे लिफ्ट कनाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, डेर इस्माइल खान में जो सुई गैस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, डेर इस्माइल खान में बिजली का लोड शेडिंग थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देख लो और इस दौर में देख लो। डेर इस्माइल खान के वकला के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लाए वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सदर थे उन्होंने किए, और कैजार खान मियाँ खेल ने हर दिन रात 24 घंटे वकला के लिए मेहनत की है इस बार में, और उनका हक बनता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जिताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर को निशान जिताएं, अपने मुस्तकबिल को जिताएं, बेरोजगारी का खात्मा करें, नौजवानों को रोजगार दें, अपनी माओ बहनों को जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रही हैं ये उन पर फर्ज है कि अपने आने वाले मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। ठप्पे पे ठप्पा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नारे भुट्टो। नाजरीन, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हूँ और हम वकला से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मज़ीद कुछ वकला मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? सर, पाकिस्तान की हर बाशऊर अवाम का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह यही है कि पाकिस्तान में पार्लिमान को जो भी इज़्ज़त दी है, पार्लिमानी निज़ाम में
जितने भी अमेंडमेंट की गई हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हैं। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो 18वीं तरमीम की सूरत में है, और जो बाशऊर पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क की खिदमत की है, तो वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो मज़दूरों, किसानों और तलबा की जमात है, वो खुला की जमात है। और हमेशा जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है तो मज़दूरों को उनके हकूक़ मिले हैं, हारियों को उनके हकूक़ मिले हैं, किसानों को उनके हकूक़ मिले हैं, तलबा को उनके हकूक़ मिले हैं, ख़वातीन को उनके अपने हकूक़ मिले हैं। अभी रिसेंट आप देख लें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ख़वातीन को जो उनके अपने हकूक़ मिले हैं। आपने देखा है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है तो बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिला है और ख़वातीन को उनके हकूक़ मिले हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, माशी बहरान से और इस तरह के जितने भी बहरान से पाकिस्तान गुज़र रहा है, हम ये समझते हैं कि वह हल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अगर इंशाअल्लाह उम्मीद है और हमें यकीन भी है, इस तरह यकीन है कि जिस तरह हमारा क़यामत पे यकीन है, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेयर्स विंग जितनी भी है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाला जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। और हम इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी आई है और नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आएंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी बहरान है, मतलब ये बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, दहशतगर्दी है, इसके अलावा जितने भी बहरान है, इसको हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मकामी सहाफ़ी इमरान राजपूत साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन में गहमा गहमी जो है वो उसको किस तरह देख रहे हैं और कौन से उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इमरान राजपूत साहब। वालेकुम सलाम जनाब। आप क्या देख रहे हैं कि जो गहमा गहमी है इलेक्शन की, उसको आप कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त डेर इस्माइल खान के अंदर जो माहौल है इलेक्शन के हवाले से वो इंतहाई सर्द है। हमने देखा है यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि जहाँ इलेक्शन के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो यहाँ इस वक्त अच्छी पोजीशन पे इसलिए है कि तमाम जो कैंडिडेट उन्होंने ठहराए हैं वो बहुत मजबूत हैं अपने हल्के के हवाले से, और इन्होंने प्रीवियस 5 सालों में आवाम के साथ रब्ता भी रखा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि मलिक कयूम हसाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होने जा रहा है और उन्हीं के साथ इनकी इस वक्त कंपेन भी देखने में आ रही है कि उनकी कंपेन बिल्कुल बराबर चल रही हैं। और लगता यही है क्योंकि कयूम हसाम भी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने तकरीबन 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं और बहुत थोड़े मार्जिन से वो लोग हारे हैं कयूम हसाम। अच्छा ये बताएं, एक जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उस पर आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी वो जमातें हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा? आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि ये वो हल्का है जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो हमारे यहाँ के कायद हैं, इनके जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, ये उनका हल्का है। तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं अली अमीन खान गंडापुरी, ये उनका हल्का है। और फैसल करीम खान कुंडी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी जो है ना रहनुमाई है, उनका हल्का है। और ऑफ कोर्स सब बेहतर जानते हैं कि इन तीनों में जो है ना वो बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और यही हल्का है NH-44 डेर इस्माइल खान जो कि कौमी असम्बली के दीगर जो हल्के हैं उनमें एक अहमियत का हामिल है। इसी वजह से कि PDM का सरबराह यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। फैसल करीम खान कुंडी यहाँ से जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं और वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर जो कि वज़ीर अमूर कश्मीर रह चुके हैं और बड़ा अहम रोल रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो और उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुकाबला इन तीनों शख्सियात के अंदर होगा। अच्छा ये बताएं कि डेर इस्माइल खान में अहम मसाइल क्या हैं? बहुत अच्छी। डेर इस्माइल खान में सबसे अहम मसाइल जो है वो यहाँ के अंदर सफाई का ना होना है। यहाँ पर अस्पताल के अंदर ना चिल्ड्रन अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बर्न यूनिट मौजूद नहीं है और देखा यह जाता है कि यहाँ पर जब भी बारिश आती है निकासी के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। इतना बड़ा हल्का है, इतने बड़े जो है ना यहाँ से उम्मीदवार कौमी असम्बली यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है पीने का साफ़ पानी तक यहाँ पे मुयसर नहीं है लोगों को। अस्पताल की सेहत की जैसी जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर मुयसर नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम वजह यही है कि यहाँ पर सियासी असर रसूख की वजह से अस्पताल को, गुमल यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज को और जो हमारे सफाई के इदारे हैं उनके अंदर प्रॉपर तौर पर उन लोगों को ना लेके आना जो कि अहल
है इसलिए कि यहाँ पर नाअहल और गैर जो मयारी लोग हैं जिनकी कोई अहलियत नहीं है उनको सियासी सिफारिश के ऊपर ला के बिठा दिया गया है। अच्छा इमरान राजपूत साहब, हम जब आवाम में गए तो उन्होंने ज़्यादातर जो है बिजली के मसाइल और गैस के मसाइल उठाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सबसे अहम मसाइल हैं और क्या हैं वो बिजली और गैस? ये तो इतने बड़े मसाइल हैं कि इनको तो कह कह कर सुन कर जो है ना हम लोग थक गए, हमारे कान भी जो है ना वो कहते हैं कि अब जो है ना वो आवाज़ सुनने से कासिर हैं, इसलिए हम बात ही नहीं करते। ये तो वो मसाइल है, डेरा इस्माइल खान के अंदर 24 घंटे के अंदर बिजली नहीं होती है। गैस की ये है कि जब से गैस यहाँ पर आया है आज से तकरीबन 10 साल हो गए हैं, कहीं से भी ये नहीं हमने सुना कि यहाँ पर गैस मुकम्मल तौर पर आ रही है। कभी गैस का चूल्हा मतलब है कि यहाँ मील टाइम पे नहीं, हमने खुद सोशल फोरम के ऊपर इसकी आवाज़ उठाई है, बाकायदा मैंने खुद जाकर जो है ना इसके ऊपर वफाकी मोहतसिब में केस किया है, केस रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर फैसला भी हुआ है, लेकिन कि मील टाइम में यहाँ पे गैस देंगे। और शोमिया किस्मत है कि अब तक डेरा इस्माइल खान में गैस नहीं है, तो ये मसाइल नहीं, गैस है ही नहीं तो क्या बात करेंगे उसके ऊपर, बिजली है ही नहीं तो क्या बात करेंगे उसके ऊपर, ये तो मसाइल ना हुए। ये तो वो चीज़ें जो नामुमकिन हो चुके हैं इस वक्त। डेरा इस्माइल खान में ये चीज़ें बिल्कुल नापैद हैं, मसाइल भी नहीं कह सकते आप इनको, है ही नहीं। जिस चीज़ को हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारे मसाइल हैं? तो बिजली और गैस तो बिल्कुल यहाँ मौजूद ही नहीं है। बुनियादी ज़रूरत से भी हट कर मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों की तो आप डिस्कस ही ना करें कि इतने बड़े कौमी हल्के के अंदर जो पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं, अपने हल्के के अंदर इन्होंने ना बिजली छोड़ी है ना गैस छोड़ा है। अब तो शायद हमें जो ना पीने का साफ पानी की जैसे हमने बात की वो तक भी हमें मुहैया नहीं है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए की उसके अंदर करप्शन हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल आपके सामने ठहरा हुआ है, चले जाएं अस्पताल के अंदर इंटर होने के लिए, आपको जाने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा जी आप किस जगह से आए हो, क्यों आए हो, क्या, फिर आपका गेट खुलेगा, फिर मरीज अंदर जाएगा और इस टाइम तक मरीज तड़प तड़प के मर जाता है यहाँ पर। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना है कि यहाँ पर मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के वोटर्स हैं वो पुरुम्मीद हैं कि हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो ये मसाइल हल होंगे। देखते हैं कि इलेक्शन के बाद ये मसाइल हल हो पाते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रही हैं? मौलाना फजल रहमान को, मौलाना को। वजह क्या है? वजह ये मैं सबका ज़िला मेंबर गुलशन बीबी मौलाना को इसलिए दे रहे हैं कि वोट देना हमारा कौमी फरीज़ा है। पुरअमन इंतखाबात के लिए पाकिस्तानी मर्द और औरत का हक़ है। मौलाना को इसलिए दे रहे हैं कि हमारे दीन इस्लाम के वो पाबंद हैं, तो इसलिए मौलाना को दे रहे हैं। अच्छा, आपकी नज़र में डेरा इस्माइल खान में बड़े मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत हैं, गलियों के, स्ट्रीट लाइट के, बिजली के, जितनी गुर्बत DI खान में, जितना पसमानदा इलाका DI खान है ना, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में इतना पसमानदा इलाका कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी आता है तो अपने मसले मसाइल को याद करता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे लेडीज़ को वोट इतने नहीं दिए नहीं पोल होने देते, क्योंकि देहाती इलाकों में चले जाएं तो लेडीज़ वोट पोल नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मर्द का हक़ है वोट देने का, उतना लेडीज़ का भी हक़ है। आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह मौलाना साहब को वोट देंगे। अच्छा, वजह क्या है? इंशाल्लाह मौलाना साहब ने डेरे के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं मौलाना साहब ने लाए, समझ आ गई। अस्पताल हो, गुमन यूनिवर्सिटी के काम हो, गुमन मेडिकल कॉलेज के को, मुफ्ती महमूद अस्पताल हो, दीनार कैंसर अस्पताल हो, इंशाल्लाह जितने भी है सब मौलाना साहब ने किए। और बाकी अभी जो सिपेक ये बन रहा है बाईपास, ये मौलाना साहब ने मंजूरी की है। अली अमीन ने तो जो काम करा था वो छोटे मोटे गलियों का काम करा, पार्कों का काम किया, वो इतना बड़ा काम नहीं है। हमारा असल मसला है सिपेक का, मौलाना साहब की वजह से सिपेक का काम हुआ, अगर मौलाना ना होता ये सिपेक हमारे इधर ना आता, समझ आ गई। बाकी तो छोटे मोटे काम तो पहले भी होते थे गलियों के, ये तो पहले काउंसलर वगैरह करते थे। अली अमीन ने कौन सा बड़ा काम किया हमारे डेरे के लिए? ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो हम तरक्यात कामों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया उसने। इंशाल्लाह हम वोट मौलाना साहब को देंगे, पूरे भरपूर तरीके से देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बाकी जमातें हैं, जो बाकी सियासी जमातें हैं, उन्होंने डेरा इस्माइल खान में माजी में कोई काम नहीं किया? भाई ऐसे छोटे मोटे काम तो कर रहे हैं, मगर मेन काम जो हमारा है वो किसी ने भी नहीं करा। एक होता अली अमीन ने जो फारक वगैरह ये तो बनाए, मगर मेन जो चीज़ था हमारा वो नहीं, कोई भी नहीं काम करा ऐसा,
समझ आ गई है। ये मौलाना साहब को इंशाल्लाह हम वोट देंगे, इसके अलावा हम किसी और को वोट नहीं देंगे। अली अमीन ने तो 3-4 साल गुजारा, हमारे मुल्क के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है, 14 अरब का कर्जा इन्होंने लिया है। पहले इतने अरसों में कभी इतना कर्जा किसी ने नहीं लिया जमात ने जितना इन्होंने लिया अभी इस हुकूमत में। आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह हम जो है एन का वोट मौलाना फजल रहमान साहब को और सूबाई वोट पीपल पार्टी को देंगे। अच्छा, क्या वजह है कि दोनों वोट आप मुख्तलिफ जमातों को दे रहे हैं? जी वैसे जो एन का वोट है वो तो हम शुरू ही से मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वोट भी उसको देना चाहते हैं। और पीपल पार्टी जो है हमारे इलाके में जो MP अहमद करीम खान कुंडिया है, उसने हमारे लिए काफ़ी तरक्याती काम किए, इस वजह से हम इंशाल्लाह ये वोट उसी को दे रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम अगर यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या वो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं हल हो जाएंगे? उम्मीद तो है, पहले जब भी इक़्तिदार में आई है उन्होंने डेरा इस्माइल खान के लिए ऐसे कुछ काम अच्छे नहीं किए। अब इस मरतबा हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान बज़ात ख़ुद ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मरतबा जीत के हम डेरा इस्माइल खान के लिए कुछ काम करें, और अगर सूबाई हुकूमत जमीयत की आती है तो फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादातर काम करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में डेरा इस्माइल खान में जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं? बड़े मसाइल हमारे ऐसे अस्पताल वाले मसाइल हैं, और ये लेफ़्ट कनाल वाले मसला भी हमारे लिए है, और सबसे जो बढ़ के मसला है वो हमारे लिए वावडा है। वावडा में तकरीबन अब इस वक्त हम चूँकि कारोबारी लोग हैं, हम तो बिल भी वक्त पर देते हैं और टैक्स भी अदा करते हैं, तो इधर हमारे जो सिटी में है जिधर हमारी दुकानें, इधर तकरीबन 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। उम्मीद है कि ये इस मसले पर इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान खुद तवज्जो देंगे, ये मसला हम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? सलाम, हम पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है जो हमारा पड़ोसी है और हमारा जो मसला होता है हम उसके पास जाते हैं और वो फिर हमारा मसला भी हल करते हैं, तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा, वजह क्या है? वजह काम करके दिखाएं भाई। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं, क्या उन्होंने माजी में डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? कभी भी नहीं किए। अच्छा, आपको यकीन है कि यहाँ पर सिर्फ PTI है जो यहाँ पर मसाइल हल करेगी? जी। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जमीयत को हम वोट देंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह है कि जमीयत ने हमेशा मुल्क के लिए काम किया, हमेशा जो है ना उसने इलाके के लिए काम किया। मौलाना फजल रहमान ने DI खान को गैस दिया, जो बड़े बड़े मंसूबे हैं सब मौलाना फजल रहमान ने किए। अच्छा, आपको यकीन है कि जमीयत उलमाए इस्लाम अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह पर उम्मीद है, हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद जमीयत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, वजह क्या है? बस वजह ये उसने पहले भी बहुत काम किए, डेरा की बहुत खिदमत किया, इंशाल्लाह आइंदा भी वो करेगा, हमारा बिल्कुल उम्मीद है। इंशाल्लाह जैसे ही वो पास होगा इंशाल्लाह वो डेरे के लिए बहुत तरक्याती काम करेगा। अच्छा, ये जो दूसरी पार्टियाँ हैं, क्या इन्होंने माजी में डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? तबाही के सिवा और कुछ नहीं किया, बस करप्शन, चोरी, डाके, बस कुछ नहीं किया, बस खालिस मौलाना फजल रहमान साहब ही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट मौली साहब को दे रही। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? मौली साहब को। अच्छा, तो इसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने डेरा इस्माइल खान में कोई काम नहीं किया? उसमें काम कीजिए, लेकिन वोट मौलिक साहब को देंगे फिर। अच्छा, ये आपको यकीन है कि अगर जमीयत उलमाए इस्लाम यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा हल। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? मौलाना साहब। वजह क्या है? बस जमीयत में हम है सारा। अच्छा, तो आपको यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाती है तो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट दे रहे हैं? NH44 पे इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह उनकी साबका हुकूमतों में जो काम हुए हैं उन्हीं वजह से। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो वो डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह सरकारी महकमे भी हल, सरकारी महकमों के भी मसाइल भी हल होंगे और लोगों के भी मसाइल हल होंगे। अच्छा, इसमें डेरा इस्माइल खान में माजी में जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने भी डेरा इस्माइल खान में कोई काम किया है? किया, लेकिन इस तरह नहीं किया जिस तरह पीपल पार्टी के दौर में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। वजह क्या है? वजह सर बेसिकली ये है कि इन्होंने हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, इलाज, तालीम, ये इनकी मेन मैनिफेस्टो रही है,
اور ہمیشہ انہوں نے اسی چیز پہ کام کیا ہے. السلام علیکم. کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پاکستان کی جو خیر خواہ پارٹی ہے جس نے 14 سال کا ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید. اور جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے کیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آج اگر ہم امریکہ کو، چین کو، رشیا کو، جو بھی ہمارا دشمن ہے ملک کا، اس کو ہم للکارتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. کس نے دیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی دلیل ہے. اسٹیل میں کس نے دی؟ بے روزگاروں کو روزگار کس نے دیا؟ زمینداروں کو سبسڈی کس نے دی؟ جو ہمارے بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں، جو ہمارے آصف علی زرداری ہیں، جو ان کی پچھلی گورنمنٹ ہے، اس نے جو ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، نواز شریف روزگار سے نکالتا ہے، دوسری جماعتیں روزگار سے نکالتی ہے. اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو اسلام کا انہوں نے کیا کام کیا؟ کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کیا. میرے بھائیوں جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، میں ان سے کہتا ہوں ہر بات میں تم دیتے ہو کفر کے فتوے. اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ کبھی قرآن کے نام پر، کبھی انہوں نے دین کے نام پر ووٹ مانگا. لیکن مجھے ثابت کر دیں کہ ان کی حکومت بھی صوبے میں رہی، انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی. میرے بھائیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا فرض اور ان کا حق بنتا ہے کہ ہم تیر پر مہر لگا کر 8 فروری کو یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد وہ جماعت ہے جو پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مہر لگائیں، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں. ٹھپے پہ ٹھپا، پاکستان پیپلز پارٹی، نعرہ بھٹو.